आप लोग को नहीं बोल रहा है, students who are online, keep your cameras on. So we were discussing job application and resume, curriculum vitae. Is there any question you would like to ask? Or let us continue with the technical part of resume writing. So now let us talk about resume. We discussed job application and cover letters. So understanding the resume. So why it is important and how it should be formatted. One thing I have to take into consideration that resumes is the passport, a link between you and your job. If your resume is done in a proper way, then there's no stopping you. But if your resume is lacking anything, for example, grammatical errors are there, or if not properly formatted, and if there are some spelling errors, तो आपका resume entertain नहीं होगा. Because it shows the recruiter will see that it might be grammatical error, it might be careless mistakes, but if you're careless in making a resume, how will you work? तो सामने आ जाता है कि this person is a not serious kind of a person, जो कि सबसे important चीज है किसी का job होता है. अब उसी में अगर errors आपके आ रहे हैं, if there are errors, if there are spelling errors, और फिर grammatical errors आ जाए, ये दो चीज सामने आ जाती है. सबसे पहली बात हो, the person is not at all serious about the job. केयरलेसनेस बहुत ज्यादा है, ध्यान से काम नहीं करते हैं ये. दूसरी बात ये होता है कि अगर आपने मन लगा के भी किया हुआ है, तो इट शोज योर लैक ऑफ नॉलेज. दोनों चीज क्या चीज होती है, दोनों सिचुएशन क्या होता है, आपका रेज्यूमे विल बी इन द कैन, ट्रैश कैन. So that is why a lot of stress has been taken to resume when we're talking about resumes. Normally अब तो formatted आता है already, templates आता है, आप बस fill करते रहते हैं. But more in most of the companies, they will ask you to write on a plain sheet of paper, send your resume. So resume can be called as a technical details, not a summary. Technical details of summary लिखते हैं तो आपको लगता है paragraph लिखना पड़ेगा. Summary word ही लिखना नहीं चाहिए यहाँ पर. I always delete summary. It's all about your academic details of your educational qualification and work experience. If you have already worked somewhere, many students are also learning and earning. They are into some kind of part-time job, some data entry job. कुछ ना कुछ काम लोग करते रहते हैं, and this is required also. काम नहीं मिला इसका मतलब है कि आप OJT on the job training कहीं आप कर सकते थे, नहीं किया आपने. आप कहीं internship कर सकते थे. Internship can be paid or can be unpaid. तो अगर आप पढ़ते पढ़ते भी आपने कोई जॉब टेकअप नहीं किया, इट मींस यू आर नॉट केपेबल ऑफ, या आपको जॉब मिला नहीं, आपने ट्राई किया, आपको जॉब मिला नहीं. इन बोथ द केसेस आपके पक्ष में बात नहीं होती है. इट इज नॉट इन योर फेवर. सो एज एंड व्हेन इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी to work, even if it's for free on the OJTs, like I would like to work in the account section, I would like to work in the reception area, I would like to work in the library, any kind of work which is required for any person will be a plus point.
अब आप बोलेंगे फ्रेशर है तो हम लोग को कौन जॉब देगा, कौन जॉब देगा नहीं, मतलब पार्ट टाइम जॉब तो बिल्कुल आप कर सकते हैं. Companies usually want to see your um, expertise, your qualifications in your resume when you apply for a job. And a cover letter, already you know the difference between a resume and a cover letter. Since you will be asking, I've put everything in my resume, why will I write a cover letter? तो आपने लिखा था कि कवर लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज डलती होती है. It means the cover letter is something which will tell the recruiter how you have prepared yourself for this job. रिज्यूमे आप सर लिखते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया. और कवर लेटर किस तरह से हम इस जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर किए. So and a cover letter also can be, you can also start writing a cover letter right away. ऐसा नहीं कि बाद में लिखेंगे, रिज्यूमे लिखने के बाद लिखेंगे. You can still write a cover letter because that is kind of a short two paragraph story. किस तरह से तुम अपने आप को इस जॉब के लायक समझते हो. How do you think you are fit for this job? So a cover letter is a letter in which the applicant expresses an interest in a specific job or company and draws attention to the most relevant specifics on the resume. For example, आपने लिखा है कि my hobbies and interest, or I have volunteered, I have got awards for elocution, certificates. तो सब बुलेट्स में डाला है आपने ना, उसको डिटेल में आप बता सकते हैं आप यहाँ पर कवर लेटर में. Something we have you only just bulleted like areas of expertise, areas of interest. So that will be only point wise in a resume. Bullets में करेंगे या 1 2 3 में करेंगे. But the same thing will have to be explained in a concise manner. You're highlighting the best part of your expertise, your skills, जो आपने resume में लिखा है उसको आप cover letter में थोड़ा सा और highlight करके लिखेंगे. So a resume is a document that summarizes the education, skills, talents, employment history, and experiences in a clear and concise format. Clear and concise, it means it should be short, it should be concise, it should be bulleted point wise. You're not writing any paragraphs. For potential employers, the resume serves 3 distinct purposes that defines its format, design, and presentation. Format क्या है? How you have designed it and how you have presented it. To represent your professional information in writing, you need to understand the resume. A resume is almost always required. Have you all logged in? Okay. Is almost always required for applicants to office jobs. They are the first step taken by corporate recruiters and hiring managers to identify the candidate who might be invited to interview for a position. तो सबसे पहले आपके पहले तो आपका रिज्यूमे पहुंचता वहां पर ना. This is the first impression that the recruiter is getting about you. That is why in today's world they are putting the photographs also. Stamp size photographs also attached. Successful resumes highlight specific accomplishment applicants have achieved in former positions such as cutting costs, transcending sales goals, increasing profits, and building out teams. ठीक है, ये सब प्रोफेशनल्स के लिए, ये सब सीवी जो लिखे बनाएंगे उसके लिए. आपके लिए क्या, आपके लिए भी जरूरी ये सब हो जाता है. हाउ यू कैन हाईलाइट, आप अगर क्लास के सीआर हैं तो किस तरह से आपने टीमशिप बनाया है, किस तरह से आपने प्रोजेक्ट में वर्क किया है, किस तरह से किसी इवेंट को कोऑर्डिनेट किया है आपने, किसी कल्चरल इवेंट हुआ या एनी सोशल
फॉर एग्जाम्पल देयर वाज इंस्पायरो, उसमें क्या 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 रोल रहा आपका? वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट रहा कि नहीं आपका? और क्लास में हाउ आर यू कोऑर्डिनेटिंग? आपका छोटा सा टीम है, तो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आप? तो एज अ सीआर ऑफ द क्लास, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सीआर का नहीं होता है, बाकी लोगों का भी होता है कि कितना इनिशिएटिव आप लेते हैं क्लास में. हाउ मच अवेयर आर यू अबाउट द क्लास? हाउ वेल यू नो द पीपल इन योर द स्टूडेंट्स इन योर क्लास? You can highlight your interpersonal communication. It means interpersonal communication क्या होता है? What is intrapersonal and what is interpersonal? मैंने नहीं बताया है. बताया रियाज मैंने शुरू में, बिल्कुल बिगिनिंग में. मतलब जो आउटसाइडर्स के साथ इंट्रा कम्युनिकेशन होता है जब हम खुद सोचते हैं, जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं. When we are thinking, when we are analyzing, when we are planning, जब मुझे किसी की जरूरत नहीं होती है, अकेले रहकर भी सोचते हैं ना आप? सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं, आप बात करते हैं, ये कर लेना चाहिए मुझे, वो कर लेना चाहिए. Like you're planning, you're thinking, you're analyzing. उसने ऐसा किया है, ऐसा क्यों किया है? आपको असाइनमेंट देते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? अगर है तो क्या है? What are the advantages? What are the disadvantages? Intrapersonal communication. I'm writing this down. All this will be required. अगर आप, if you are good at intrapersonal communication, it means you are a very good person at organizing. You are analyzing things, you are organizing things, you are planning things, you are working out some plans. The term is intrapersonal. Communication. इंट्रापर्सनल क्या होता है? जब हम खुद से बात करते हैं, when we are talking to ourselves. Talking, thinking, analyzing, planning, किसको? कोई तो नहीं, nobody. तो एक्सपर्टीज अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप डाल रहे हैं, अपना स्किल आप डाल रहे हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इसका मतलब होता है कि आप बहुत यू आर वेरी गुड एट प्लानिंग, थिंकिंग. ग्रुप में क्या करना है, पहले आप होमवर्क जो करते हैं तो क्या करते हैं आप? यू आर डूइंग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. आप खुद से सोचते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि कल उनको प्रेजेंटेशन करना है, क्या करना है. सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, दिस इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. आपका असाइनमेंट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस? टर्म लिखवा रहे हैं इसलिए ताकि आप अपना कवर लेटर में ये सब बातें डाल सकें, एंड हाउ इट हैज हेल्प्ड यू. अगर आप ये असाइनमेंट कर लेंगे, then you will know what are the advantages. The advantages, okay. And then we come to interpersonal, which is very important also. जब हम ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, अगर आपकी दोनों स्किल अच्छी है, इंट्रापर्सनल भी अच्छी है, इंटरपर्सनल भी अच्छी है. बहुत लोग को इंट्रापर्सनल बहुत अच्छा रहता है, दे विल बी वेरी गुड प्लानर्स.
लेकिन किसी ग्रुप में वो बात नहीं कर पाते। अगर आप इंट्रापर्सनल भी आपका सही है और इंटरपर्सनल भी सही है, अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, एक ग्रुप कम्युनिकेशन विच इज इजी टू वर्क इन अ ग्रुप और टू वर्क इंडिविजुअली। लेकिन क्या आप किसी जगह नौकरी का काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो विल यू वर्क अलोन? यू विल हैव टू ऑलवेज बी इन अ टीम। लाइक आई एम इन अ टीम, I am also in a team. Somebody told me to take that class, take this class. So what did I say? I will prioritize and do this. तो हर किसी को किसी न किसी से काम पड़ता रहता है। और अगर ग्रुप कम्युनिकेशन मेरा सही नहीं है, टीम वर्क सही नहीं है, इट मीन्स आपको पता ही नहीं कि मेरे बगल में कौन लड़की बैठी हुई है, कि उसका नाम क्या है। सेम क्वेश्चन मैंने पूछा था पीजीडीएम के स्टूडेंट्स को, तो सीआर को, कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, उनके नाम जानते हैं, वो जानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानता उनको। तो किस तरह के सीआर तुम हो कि तुम पता ही नहीं। इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन यू नीड, अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, if you are the HR or if you are working as a manager, you need to know everybody in the group. कितना वेल आप जानते हैं, कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर एट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट करते हैं? आर यू रिस्पेक्टिंग ईच अदर? आर यू अ गुड लिसनर? क्या आप सबकी बात सुनते हैं कि अपने ही बोले जाते हैं आप? So find out the advantages of intrapersonal and interpersonal communication so that you can also put this in your resume. और ये 2 पॉइंट आपने सीवी कवर लेटर में भी जा सकते हैं, राइट? ये आपका असाइनमेंट है, राइट? अंडरस्टैंडिंग द resume. तभी आप देखा, जब करंट डेज में देखा जा रहा है अभी, तो सक्सेसफुल resumes highlight specific accomplishment जो आपने किया है. Applicants have achieved in former position like in class in Simaj College, आपने bridge class से लेकर के अभी तक में क्या किया है, क्या नहीं किया है, your 3 years at Simaj. और resumes are now sent by mail, not snail mail. अब अभी क्या क्या हो रहा है, it's a digital world, so resumes are being sent by mail. snail mail क्या होता है? स्नेल मेल होता है कि जो पोस्ट से जाता है चिट्ठी, अब कहाँ कोई नहीं आता है, स्नेल मेल है। अभी भेजोगे तो 4 दिन के बाद मिलेगा, वो मिलेगा भी कि नहीं, The traditional one to 2-page limit stands for nothing, but nothing prevents you from attaching a brief video introduction or other illustrations if it is relevant and enhances your presentation. और अब तो और हो गया है कि अपना वीडियो भी भेज देते हैं मेल रेज्यूमे के साथ, या अटैच करते हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग, तो पढ़ाई भी चेंज हो रही है। पहले रेज्यूमे बता दिया जाता था, अब रेज्यूमे तो क्या होता है, अब तो यू कैन अटैच वीडियो विद ऑलरेडी डिफाइंड रहता है, प्लीज सबमिट योर वीडियो। हाँ, it's smart to rewrite your resume to tailor it to a specific job you are seeking. अब जरूरी नहीं कि एक बार resume बना दिया है तो वही चलेगा हमेशा के लिए। According to your job, you can change it smartly. कहीं अगर खोज रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, तो आप उसमें उसी तरह अकॉर्डिंगली फिट करेंगे। आप जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही, अगर आपके स्किल में वो बात है तो उसको आप सामने कर देंगे। विल हाईलाइट थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। Most resumes include a brief summary of skills and experience followed by a bullet list of previous jobs in reverse chronological. It means reverse क्या होता है, जैसे आपको टेबल बनाना है एजुकेशनल का, सबसे लास्ट में सबसे पहले, लाइक पहला कॉलम होगा परसुइंग बीकॉम फ्रॉम सिमज कॉलेज, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट एंड 10th,
तो reverse chronological order. And a list of degrees earned. A final section may be added to highlight specific skills such as fluency in a foreign language. अगर आपके पास है तो मैंने पहले ही कहा था अगर आपके foreign language है आपके पास, then chances are very bright that your salaries will go up. Knowledge of computer language, professionally used hobby or useful hobbies. अब यहाँ पर hobbies नहीं कि my hobby is this and that. Professionally useful जो आपका hobbies होगा. क्या हो सकता है professionally useful hobbies? हाँ, वो सब चीजें जो कि प्रोफेशनली में, जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपको काम आ जाएगा. Professional affiliation and any honors achieved. Brevity, a clean layout and succinct language are all prized. मतलब कि जितना कम words use कर सकिए और to the point. Language should be very simple. Are all appraised. It means it is a plus point. कितनी concise लिखोगे, कितनी clear लिखोगे. People who have to sort through hundreds of resumes have short attention spans. और बहुत सारे resume में इनको छांटना पड़ जाता है. तो जब सबसे clear और सबसे साफ सुथरा, clear, concise, precise, to the point, using a less of words, select उन्हीं का हो जाता है. The resume heading. रेज्यूमे का कोई फॉर्मेट नहीं होता है. अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो तरह तरह से रेज्यूमे बनते हैं. and there are types of resumes also. What are the types of resumes? आपकी अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में है types of resume, right? So the heading on the resume should include not only your name, email address, and mobile phone number, but your address on LinkedIn or another professional community and the address of your website or blog if you have. अगर आपके पास है LinkedIn का, है क्या आपके पास? है. That will be also be there. सबसे पहले क्या लिखेंगे? Right side, left side, your name, email ID. On the right side, your telephone number and your address. Name and address on the left side, and the right side, your email ID and the phone number. And if you have any LinkedIn or blog, you can include that. Now, what else is required? Writing a resume. Write down your contact information correctly. आपका जो contact information है, आपका email ID है या phone number है, that should be always done correctly. Include a resume objective. ये क्या होता है? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लेफ्ट साइड में नेम एंड एड्रेस, राइट साइड में email ID and contact number. Leave one space and then write objective. Objective होता है 4-5-6 sentences का एक short paragraph होता है. That is the only sentences you write. That is the only space where you write objectives. क्या कहीं कभी देखा objective में किसी resume का objective आपको? नहीं देखा है. Objective means you're writing some sentences. For example, आप लिख रहे हैं seeking a position to work in a company which will help me to learn and earn at the same time, use my knowledge and skill to the best of my ability. समझे इस बात को? नहीं समझे? कि मैं ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूं जो मुझे अपना स्किल एंड नॉलेज है उसको यूज करने का मुझे मौका मिले एक अच्छे एनवायरनमेंट में, ताकि हम सीख सकें और सीखने के साथ साथ कुछ हम अर्न कर सकें. जितनी क्षमता है उसको पूरी की पूरी क्षमता लगाते हुए. ठीक है? दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव. I would like to work in a company. Simple भी लिख सकते हैं. I would like to work in a company which will give me an opportunity to share my knowledge and skill. At the same time, to learn and earn in a friendly environment. Simple. समझ गया ना?
ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है। आप एक काम करो, बीकॉम फ्रेशर्स का रिज्यूमे ऑब्जेक्टिव देखो, तो बहुत सारे रिज्यूमेस मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स, और देख करके सबको समझो। पहले सबसे पहली बात क्या है कि रिसर्च करो किस किस तरह से, अपना तो मैंने जरूर बना लो, लेकिन और लोग कैसे लिखते हैं उसको भी देख लो, कैसे लिखा जाता है, हाउ इट इज डन। इट विल गिव यू एन आइडिया। और ये इसका प्लेसिंग कहाँ रहता है? नेम एंड एड्रेस, स्लीप स्पेस, ऑब्जेक्टिव। One short paragraph containing not more than 5-6 sentences. अब कोई इतना लंबा लंबा लिखने के लिए नहीं कह रहा है कि पूरे पेज में तुम ऑब्जेक्टिव ही भर दो. Nobody is saying that. But because you have to concise it in one, the whole technical details have got to be concised in just one page. There is no other page which is allowed in a resume. ठीक है? Include a resume objective. लिस्ट, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, टेबल बन जाता है इसमें. मेक अ टेबल. सबसे पहले परसुइंग बीकॉम, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट एंड योर 10th, या वो करना है. इंस्टेड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फोकस ऑन रेलेवेंट स्किल्स. तो वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है, आपका रेलेवेंट स्किल्स क्या है, द बेस्ट पार्ट ऑफ योर कोर सब्जेक्ट्स क्या है. अभी तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन तरीका तो आपको बनाना है ना. अभी क्या सबसे अच्छा क्या है तुम्हारा, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपके कोर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, विच सब्जेक्ट सबसे अधिक मार्क्स कहाँ किसमें मिलता है? तो अपना रेलेवेंट स्किल्स डाल दीजिएगा. इट मींस अगर आप कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल यहीं पर डालना है आपको, इंट्रापर्सनल जितनी भी डालनी पहले, लेकिन देख तो लो एडवांटेजेस क्या है, समझ लो पहले. रिज्यूमे में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए फट से पूछ देगा आपको, क्योंकि आप रेलेवेंट स्किल्स में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, they can ask you anything about interpersonal, group harmony, teamwork, teamship, how good you are in connecting with other people. So highlight your skills, mention optional sections, stick to 1 page limit, है ना, stick to 1 page. मैंने बार इसको कहा है कि 2-4-5 पेज बहुत बड़ा फॉन्ट है, लाल पीला हरा करके लोग दिखाते हैं हमको. सबको मैंने डांटा था, क्या किए हुए तुम लोग, हाईलाइट कर दियो, ब्लू कर दियो, रेड कर दियो, भाई कुछ नहीं, नथिंग. ऐसा फॉन्ट रखिएगा, साइज ऑफ द शुड बी एज सच कि पूरे फिट हो जाए आपके एक पेज. और फिर आप अपने डिटेल्स के बारे में और एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज जब कर लिए हैं आप, तो पर्सनल डिटेल्स डालेंगे आप, लाइक एरियाज बता दिया, हॉबीज एंड इंटरेस्ट डलता है. पर्सनल डिटेल्स आप डालेंगे, सबसे लास्ट में पर्सनल डिटेल्स डालेंगे. हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बाद पर्सनल डिटेल्स, मतलब आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, एड्रेस आप डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी पर्सनल डिटेल्स वही होता है, नेम, whether मैरिड और सिंगल, that's it. और रेफरेंस का मतलब होता है सबसे लास्ट में रेफरेंस लिख देते हैं, रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड. मतलब रेफरेंस ये होता है कि तुम, हाँ क्या नहीं, मतलब कोई और, हाँ जैसे उसका फोन नंबर, जैसे कि तुम मेरा नंबर दे दोगे नंबर, ठीक है, तो हमको लोग फोन करके पूछेंगे कि हाँ रेफरेंस संजना सिन्हा, सिमंज फैकल्टी, सिमंज कॉलेज पटना. तो ये आपको लिखना नहीं है, लिख देना है रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड. अगर बोलेंगे कि गिव योर रेफरेंस, तो आप दे सकते हैं कुछ लोगों को जो आपके फैमिली मेंबर्स में नहीं है,
You can give anybody who knows you, जो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसे नाम, ऐसे लोगों का नाम देना अगर मांगा जाएगा जो जो तुम्हारे बारे में कोई अच्छा कह सके, यानी कि ऐसा ना दे दो वो लड़की कोई अगर नेबर को खुदा ना खास्ता कुछ खुदा साहब से है, तब तो फिर वो क्या, तो रेफरेंस दिया जाता है। हम लोग के पास फोन आते हैं, फोन नंबर विप्रो पे तो लोग दिया है ना, तो दिस इज फ्रॉम विप्रो, HR फ्रॉम विप्रो। और हाँ ठीक, अपना जानते हैं, बहुत लखैरा बदमाश, फिर भी बोल देते हैं हाँ यस इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, का क्या बोलेगा, अपना ही बच्चा है। तो हम फिर बाद में बोले तुमको बोल तो दिया करो कि नाम दिए हो। तो रेफरेंस विल बी टू बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। इसको एक पेज में आप बना के रखिए, हो सकता है एक ही में लिखने के लिए भी आ जाए, राइटर रिज्यूम। हाँ हो सकता है, जब पता है तो लिख ही, सब काम किया हुआ है तो प्रॉब्लम क्या है, समझना बस फॉर्मेट है इसमें। आप टाइप्स ऑफ रिज्यूमे तो अगर टाइम रहेगा तो बता देंगे, लेकिन आप लोग को अभी है नहीं, सेकेंड सेमेस्टर में है। इट्स सेकेंड सेमेस्टर में इज जस्ट कैरी फॉरवर्ड, कुछ बताया गया है। हाँ अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक से नहीं पढ़ा है या बस ठीक से नहीं पढ़ा है, उसको दिक्कत होती है सेकेंड सेमेस्टर में, बिकॉज सारा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो बोलते पढ़ा दीजिए आगे बढ़ते हैं। मैम समझ में नहीं आ रहा अभी भी, मेनी स्टूडेंट्स जिनका सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम था, मैम एजेंडा बताइएगा, भूल गए हैं हम, तो भूल कैसे वो सब चलता रहता है। तो इस किताब को फेंकिएगा नहीं, जो किताब मिला मिला हुआ आपको, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू इन द सेकेंड सेमेस्टर। और सेकेंड सेमेस्टर की कुछ चीजें हैं जो आपको हम बता देते हैं, उस पर एक बार देख लीजिएगा उस क्या क्या चीजें। फॉर एग्जाम्पल वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जानते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देख लीजिएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लीजिएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स देख लीजिएगा, एडवाइस एडवाइस उस तरह की चीजें जो है वो देख लीजिएगा। एनालॉजीज भी देख लीजिएगा, एनालॉजीज टू द डेफ, सॉरी, टू द डेफ साउंड, टू द ब्लाइंड क्या होगा, विजन। तो ऑप्शंस रहता है, तो इसको बोलते हैं एनालॉजीज। तो इस तरह का कभी जितनी भी जो पढ़ाई हुई है ना 10th तक की इंग्लिश की, इंटरमीडिएट तक की, वो लोग दे ही देते कैसे। हो सकता है पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, they can ask you. Okay, you never get a second chance to make a first impression, very rightly said. फर्स्ट इंप्रेशन देने के लिए सेकंड चांस नहीं मिलता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, सो मेक अ गुड इंप्रेशन व्हेन यू आर राइटिंग अ सीवी। अच्छा कई बार इंटरव्यूज में होता है, द HR विल डायरेक्टली टेल यू डिस्कस योर रेज्यूमे। अगर बच्चे ने खुद बनाया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी खुद लिखा है, सब खुद, तुम लोग सब खुद ही लिखोगे मुझे पता है, तो दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारे लिए कोई टीचर बना दिए हैं, कोई दीदी बना दी है, कोई भैया बना दिए हैं, फादर बना दिए हैं, तो तुमको पता ही नहीं क्या लिखा गया है, तो तुम क्या डिस्कस करोगे। कभी कभी तो they will tell you discuss your objective, तो गूगल से कट पेस्ट कर लियो हो तुम लोग, तो पता ही नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड ले लियो ताकि उसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। हाउ एम्बैरेसिंग विल दैट बी। इसीलिए खुद से लिखा करो, जितना सिंपल, जितना क्लियर। अच्छा
Why you need a good CV? Your resume or CV is to get a job. Your resume or CV's job is to get you an interview. आपका CV और resume देख करके they will call you for the interview. कई बार तो इंटरव्यू भी नहीं बुलाई जाती है. कारण क्या? Lot of errors in the resume. Skill set सही नहीं लिखा हुआ है. Not properly done. Haphazard तरीके से कुछ लिख दिए हैं. बस खाना पूर्ति करके बनाना है, बना के दे दी. Assignment था. You have to take proper care. So, your resume or CV is your visiting card, your ambassador, your shop window. It represents you. It has a specific purpose to get you an interview. To do this, it must attract. क्या-क्या चीजें होनी चाहिए? Your resume के सबसे पहले एक resume आता है सामने. What is the first thing which a recruiter sees? What an HR sees in a resume? Objective. Objective. जितना अच्छे तरीके से लिखा रहेगा उतना ही अट्रैक्टिव होगा. It should attract. So what is the purpose of a resume? A resume should attract, should inform, should persuade. What is persuading? Persuasive skills. Relevant skills में आप डाल सकते हैं. क्या वो convincing skills है? Persuasive skills है. आप business English आपका course subjects है. तो आपको तो और भी अच्छा लिखना चाहिए. अपना बनाना चाहिए. So a resume should sell. In first semester, there are questions like a sales letter is a job application is a sales letter. Comment. So a resume is also something which sells. What does it sell? तुमको sell. You're selling yourself, your skills. For the job, you are spending time for which you will be paid remuneration. So a resume should attract, should inform, should persuade, and should sell. A good resume or CV is one of your most important tools in the search for employment. MCQs में आता है ये सब. Fill in the blanks आता है. True and false आता है. So you must read. The extra जो मैंने आपको notes बना रखा आपके लिए to make it simple for you, वो तो आपको हम send कर ही देंगे. आपके जो content में book में जो है उसको भी पढ़ लेंगे आप. That can be पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा. So what a resume is not? A resume is not a book. A resume is not an obstacle. कोई hurdle नहीं है. ये तो hurdle को दूर करता है. A resume is not a tombstone. It is not a landmark. Tombstone. कि मील का पत्थर नहीं है. A milestone नहीं है आपका. A resume is not boring or difficult to read. A resume is not your life story or your autobiography. A resume or CV is not a catalog of your personal opinion. True and false and multiple choice questions में miss मत कर जाना कि resume what is not. So this is done with you. और कैसे बनाएंगे formatting समझ गए? Left side name and address, right side email ID and contact number, leave a space, objective, leave a space, make tables, qualification, and then your proper subjects, what is your expert in, core subjects, skill set.
जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी डाल दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अवार्ड्स कुछ मिला वो डाल दीजिएगा, इंटरेस्ट एंड हॉबीज डाल दीजिएगा, एंड पर्सनल डिटेल्स सबसे लास्ट में रेफरेंस। हाँ, लास्ट में लोग सिग्नेचर डाल देते हैं, सिग्नेचर एंड डेट डाल देते हैं, सो दैट इट इज एन अपडेटेड डेट, not necessarily. So that is the end of. Now अब कोई ऐसा पोर्शन है जो रिवाइज करना है? We still have 1 week's time. Yes, anybody wants any revision? हाँ, है क्या? No, ma'am, after next class. Yes, yes, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। रेवती जा बिजनेस लेटर भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, बिजनेस लेटर भेज देंगे और डिस्कस भी कर लेंगे। Otherwise, let me know if you want to discuss anything. Or I would suggest previous questions है उसको हम लोग कर लेंगे। Right?